we start a new chapter. Arshana Mataji, Sunita Mataji and Chandra Mataji have their services. जो 13th chapter है उसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, और इंग्लिश में इसका जो नाम है वो है नेचर। प्रकृति मतलब नेचर, पुरुष मतलब एंजॉयर, और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये है। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे इस चैप्टर को। ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये चैप्टर। हाय कृष्णा। Mataji I or think okay. Lata Mataji, you can put her on mute. But Lata Mataji, please put yourself on mute because वो हो भी नहीं रहा है. Anyway, so I'll just say the shloka once and then पहले Arshana Mataji, then Sunita Mataji, and then Chandra Mataji. Arjuna uvacha prakritim purusha cheva shetam shetragyamev cha edvetitum ichchami jnanam geye cha keshava. Shri Bhagwan uvacha idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate edhato veti tam prahu kshetragye iti tadvitha. Hare Krishna. Mataji, Arshana Mataji, yes Mataji. Arjun vacha prakritim purusham cheva kshetram kshetragyam cha. Mataji, let's do it together. Let's do it together. Arjuna uvacha Arjuna vacha prakritim purusham cheva prakritim purusham cheva shetam shetragyameva cha kshetram kshetragyam cha edvetitum ichchami etadveditum ichchami jnanam geyam cha keshava. jnanam geyam cha keshava. Shri Bhagavan uvacha Shri Bhagwan uvacha idam shariram kaunteya idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate kshetramityabhidhiyate etado veti tvam prahu etadyo vetti tam prahu kshetragya iti tadvitah. kshetragya iti datitvah. Very nice, Mataji. Thank you so much. Thank you, Mataji. Sunita Mataji, let's do it together. Arjuna uvacha Arjuna uvacha prakritim purusham cheva prakritram purusham cheva kshetram kshetragyameva cha kshetram kshetragyameva cha edvetitum ichchami etadvitam ichchami jnanam geyam cha keshava. jnanam geyam cha keshava. Shri Bhagavan uvacha Shri Bhagwan uvacha idam shariram kaunteya idam shariram kaunteya kshetram mityabhidhiyate kshetram mityabhidhiyate bhidhiyate kshetram mityabhidhiyate etado veti tvam prahu etdo veti tam prahu kshetragya iti taditah. Gretagya iti tadityaha. Very nice, Mataji. Thank you so much. Yes, Chandra Mataji. Let's do it together. Arjuna uvacha Arjuna uvacha prakritim purusha cheva prakritam purusham cheva kshetram kshetragyameva cha kshetram kshetragyameva cha edvetitum ichchami edvetitum ichchami jnanam geyam cha keshava. jnanam geyam cha keshava. Shri Bhagavan uvacha Shri Bhagwan uvacha idam shariram kaunteya idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate kshetramityabhidhiyate etadhva veti tvam prahu etadyo veti tam prahu kshetragya iti taditah. kshetragya iti tadvitah. Very nice, Mataji. Mataji, please read the translation also. हिंदी वाला जो छोटा वाला translation है वो. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ
तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। सो जो ये 13.1 है, हम 13.1 एंड जो 2 है, हम दोनों को साथ में ले रहे हैं आज में। सो बेसिकली इसका जो नाम है प्रकृति, पुरुष और तथा चेतना, ठीक है, ये इसका नाम है। ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की कोशिश करेंगे और ये धीमे धीमे समझ आ जाएगा। और जब इस वाले चैप्टर को स्पेशली हम बाद में भी इसका जो पूरा जो बड़ा वाला ट्रांसलेशन है वो भी हम बाद में इसको पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर डाउट्स रहेंगे ही रहेंगे। सो यहां से ज्ञान योग प्रारंभ होता है। भगवत गीता में पूरी भगवत गीता को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 to 6 जो है वो क्या है, कर्म योग है। कर्म योग मतलब कि जो कि बताता है कि कर्म कैसे करें जो कि हमें भगवान से मिला दे। कर्म योग, कर्म नहीं, यहाँ पे नाम है कर्म योग। योग मतलब कनेक्शन। तो कर्म कैसे करें कि वो हमें भगवान से मिला दे। फिर जो लास्ट वाला जो है 13 to 18, उसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान मतलब कौन सी ऐसी नॉलेज लें, ज्ञान कैसा प्राप्त करें जो कि हमें भगवान से मिला दे। और जो बीच वाला जो है 7 से 12 जो भी हम पढ़ के खत्म करे हैं वो है भक्ति योग। और भक्ति योग में भगवान ने पूरे इसमें बताया है कि भक्ति योग कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति योग। ज्ञान वाला जो आएगा ना, ज्ञान योग जो अब शुरू हो रहा है, इसमें भी जो कंक्लूजन होगा, जो एंड रिजल्ट होगा, जो एसेंस होगा, वो यही एसेंस होगा कि ज्ञान लो, पर ज्ञान लेने के बाद करना क्या है। ज्ञान लेने के बाद करना क्या है, करना ये है कि जब ज्ञान ले ही लिया है तो भगवान की सेवा करनी है। डिवोशनल सर्विस, भक्ति करनी है। भक्ति को क्या बोलते हैं, डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब सेवा, डिवोशनल मतलब प्यार से, भक्ति से सेवा करनी है। किसकी, जिसको हमने जाना है, जो जानने योग्य है। अब ये कौन जानने योग्य है और कौन जानता है, कैसे जानता है, ये इस चैप्टर के अंदर में बताएंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें ना पूरा, अगर हम बहुत सोच के समझ के आंखें खोल करके ज्ञान से, कर्म से, किसी भी तरीके से हम देखें ना, तो सिर्फ 3 ही चीजें घूम रही हैं इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। 3 ही चीजों की से इंटरेक्शन होता है, बात होता है, जो भी कुछ है वो 3 चीजों के अंतर्गत ही होता है। वो 3 चीजें क्या है, एक तो प्रकृति, मतलब कि ये जो भौतिक जगत है, जो ये मटेरियल नेचर है, और यहाँ पे प्रकृति जो बोल रहे हैं भौतिक या मटेरियल नेचर, वो बॉडी की बात हो रही है। इस बॉडी नहीं, ये मटेरियल नेचर भी तो बॉडी है, इसके अंदर सब कुछ हो रहा है ना, तो ये भी तो बॉडी है। तो हर चीज में बॉडी भी है और फिर उसके अंदर भी है। तो ये जो भौतिक जगत है ये भी तो बॉडी ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकृति मतलब नेचर मतलब मटेरियल बॉडी की बात हो रही है, नंबर 1। फिर नंबर 2 क्या हो रहा है, जीव और परमात्मा, ठीक है, इसकी बात हो रही है। बेसिकली ना यहाँ पे 3 ही चीजें, या तो नेचर है, अगर आप देखो ना तो या तो नेचर दिखेगा आपको, या जीव है, या जीव के अंदर परमात्मा है। इज इट ओके, ये 3 चीजें, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम देखेंगे तो 3 ही चीजें है ना, या तो नेचर है, या जीव है, या परमात्मा है। इसी से इंटरेक्शन चल रहा है। जीव कभी नेचर से इंटरेक्ट करता है, फिर परमात्मा को समझने की कोशिश करता है। यही 3 चीजें ही आपस में एक चल रही हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि चैप्टर 12 जो हम पढ़ चुके हैं उसमें ये बताया गया है कि साकार रूप से जो भक्ति करता है श्रद्धा और प्रेम के साथ में, वो भगवान को अति प्रिय है। एसेंस पिछले चैप्टर का ये था, और वही श्रेष्ठ भी है। भगवान को प्रिय है एक बात है, वो खुद भी बिल्कुल श्रेष्ठ है, उसने बेस्ट चॉइसेस की हैं, वो श्रेष्ठ है, ठीक है। तो अब नाउ दिस चैप्टर, इस चैप्टर कैसे बिगिन होता है, अर्जुन ने कुछ प्रश्न वापस किए। कैसे, क्या प्रश्न किए, जब वो वन में था, वनवास में था, जब वो अज्ञातवास में था, तो वन ये लोग घूम रहे थे। तो जैसे काम्य वन था और भी ऐसे बहुत सारे वन थे, उसमें ये लोग घूम रहे थे। तो जब घूम रहे थे तो साधु संत वहां पे होते हैं, वो तप करते हैं। उन लोगों को पता था कि जो पांडव हैं ये लोग आए हुए हैं, और उन लोगों, वो लोग उनसे मिलने आया करते थे ऑब्वियसली। तो फिर ज्ञान विज्ञान ऐसी सब इंटेलेक्चुअल बातें, चर्चा ही हुआ करती थी। उन चर्चा के
तहत उस चर्चा के अंदर कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ करता था, जैसे कि प्रकृति पुरुष, साथ साथ होता था इस्तेमाल, जैसे कि ज्ञान और ज्ञेय, जैसे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनका एक साथ इस्तेमाल होता था। तो अब वो बात को याद करके अर्जुन जो है कृष्ण से प्रश्न करता है और 6 चीजों के बारे में पूछता है। ये 6 चीजें वही शब्द हैं जो कि उसने बार बार संतों के मुख से सुनी थी और अब उसका स्पष्ट रूप से मीनिंग समझने की कोशिश करना चाहता है। तो 6 प्रश्न पूछे, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, फिर क्या है ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, फिर क्या है क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। ये 6 प्रश्न पूछे थे। तो हम धीमे धीमे इन 6 जो प्रश्न पूछे उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रकृति के बारे में कि प्रकृति क्या है। प्रकृति हम क्या समझते हैं, प्रकृति मतलब नेचर। ये जो प्रकृति है, बोलते हैं प्रकृति, ये जो नेचर है, ये प्रकृति अभी हम तो जान गए हैं जो नेचर है कि कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं, स्वतंत्र नहीं है। ये सब भगवान की अध्यक्षता में है। जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं अभी तक के, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जैसे कि न्यूटन है, जैसे कि फराडे है, इन सब ने क्या कहा है, इन सब ने खूब रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद कहा है जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोमेटिक, ये सब ऑटोमेटिक होता है। परंतु भगवत गीता कहती है कि जो प्रकृति है वो ऑटोमेटिक या इंडिपेंडेंट नहीं है, वो मेरी अध्यक्षता में चलती है। हम जानते हैं ना, प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में ही चलती है, उनकी अध्यक्षता में ही काम करती है। वैज्ञानिक तो एक्चुअली सोल को भी बहुत अच्छे से रिसर्च कर नहीं पाए हैं। सोल मतलब आत्मा का भी बहुत अच्छे से रिसर्च कर नहीं पाए। आत्मा क्या, आत्मा आत्मा स्पिरिचुअल है। आत्मा क्या है, वो स्पिरिचुअल है। और वो कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ रहती है, उसको एक बॉडी चाहिए। जो कर्म करने के लिए आत्मा को एक बॉडी चाहिए और फिर ही वो कर्म करती है। तो ये पूरे इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब ये होगा कि एक्चुअली आत्मा को बॉडी मिल गई है, एक क्षेत्र मिल गया है उसको, तो अब उसको ऐसे कर्म करने हैं, ऐसी इच्छा करनी है जिससे वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो पाए। और वो इच्छा उसकी प्रबल कैसे होगी, साधना से प्रबल होगी। तो ये मैं बहुत आपको जिस बताया है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या। तो प्रकृति, भगवान क्या कहते हैं कि ये मेरी अध्यक्षता में चलती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रकृति हम समझ गए। अब है नेक्स्ट है पुरुष। पुरुष क्या है, पुरुष मतलब प्रकृति को नियंत्रण करने वाला, जो प्रकृति को एंजॉय करना चाहता है, प्रकृति को नियंत्रण करना चाहता है। हम एंजॉय करना चाहते हैं ना सबको, ठीक है। तो हमें भी वो पुरुष एलिमेंट है। पुरुष मतलब सीधा सीधा मतलब बता दे, पुरुष का सीधा सीधा मतलब है इंजॉयर। तो इंजॉय करेगा किसको, जो आसपास है। आसपास है क्या, प्रकृति है। तो अब समझे, प्रकृति को इंजॉय करने वाला कहलाता है पुरुष। और परम पुरुष कौन है, कृष्णा। तो कृष्णा अल्टीमेट इंजॉयर है। अब कृष्णा के ही अंश जीवात्मा भी है। जो जीव पुरुष बॉडी में है वो बिगर इंजॉयर है, जो स्त्री बॉडी में है, फेमिनिन बॉडी में है, वो लिटिल लेसर इंजॉयर है। ये बॉडी है, बस टाइप, बॉडी टाइप है कि पुरुष और फेमिनिन मतलब विमेन और मेन का बॉडी है। सो एनीवे, तो पुरुष जो है वो कौन है, वो प्रकृति को नियंत्रण करने वाला को कहते हैं पुरुष। और परम पुरुष कौन है, परम पुरुष श्री कृष्ण है, जो कि इंजॉयर है, जो कि भोग करते हैं। अब जब ये आत्मा जो है ना, ये एक्चुअली इसका बेसिक नेचर क्या है कि भगवान की सेविका है। आत्मा जो है वो भगवान की सेविका है, परंतु वो ये भूल करके और वो प्रकृति को एंजॉय करना चाहती है। तब क्या पता है, तब क्या होता है, तब वो कष्ट पाती है, तब वो कष्ट पाती है। सो अब हम समझ गए कि प्रकृति क्या है, ये जो मटेरियल, जो नेचर है, जो मटेरियल बॉडी मिली हुई है, ठीक है। और पुरुष कौन है, पुरुष जो कि प्रकृति को एंजॉय करता है, ठीक है। और परम पुरुष कौन है, परम पुरुष ऑब्वियसली भगवान है। अब सेकंड आता है कि क्षेत्र। सो अगर हम एक शब्द में पूछूं कि प्रकृति कौन है, प्रकृति क्या है, तो ये
मटेरियल नेचर या मटेरियल बॉडी की बात हो रही है। ये जो मटेरियल नेचर है ये भी तो बॉडी ही है। इज इट ओके? तो प्रकृति क्या है? ये मटेरियल नेचर या मटेरियल बॉडी। और पुरुष क्या है? परम पुरुष क्या है? सुप्रीम पुरुष क्या है? एंजॉयर। और परम पुरुष क्या है? सुप्रीम एंजॉयर। ठीक है, ये वाले बात क्लियर होगी। अब सेकंड हमारा आता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र मतलब होता है शरीर। सेकंड उसका इंग्लिश में मतलब होता है कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी। शरीर में ही एक्टिविटीज हम करते हैं और उसी से हमारे कर्म या अगली बॉडी निर्धारित होती है। उसी से हम कर्म करते हैं और फिर हमारी अगली बॉडी निर्धारित होती है। ठीक है। और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला। तो जानने वाला कौन है? आत्मा। शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। सो एक सिंपल वर्ड में क्षेत्र कौन है? ये शरीर है। ठीक है, यही शरीर नहीं है, ये पूरा और भी शरीर। तो क्षेत्र कौन है? ये बॉडी है। और क्षेत्र के कौन है? अंदर बैठी हुई आत्मा है। ठीक है, आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। जिस तरीके से किसान को खेत चाहिए बीज बोने के लिए, उसी तरीके से आत्मा को शरीर चाहिए कर्म को करने के लिए। उन कर्म को करके वो फिर बंधन में भी पड़ सकता है और बंधन मुक्त भी हो सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नो कंफ्यूजन ना? ये तो माता जी, पहले तो आपने कहा था कि एक ही पुरुष है, दैट इज कृष्णा, और बाकी सब हम लोग सब स्त्री, मतलब बाकी सब स्त्री है। बिल्कुल सही बोला। तो आप बिल्कुल ठीक बोला। सुनो सुनो सुनो, अब आप फिर से सुनो। पुरुष एक ही है जो कि कृष्ण है, बाकी आत्मा जो है उनका अंश है। जैसी जिसकी इच्छा हुई वैसे उसको बॉडी मिली। जिसकी इच्छा हुई मुझे थोड़ा ज्यादा एंजॉय करना है, उसको पुरुष बॉडी मिल गई। थोड़ा कम एंजॉय करना है, थोड़ा कम डोमिनेट करना है, उसको स्त्री बॉडी मिल गई। जिसको मीट खाने की इच्छा हुई उसको टाइगर की बॉडी मिल गई। जिसको और ऐसे करके बहुत सारी, जिसे ना उसको, किसी को उल्लू की बॉडी मिल गई, किसी को कैसी बॉडी मिल गई। इच्छा निर्धारित करती है अगली बॉडी। ठीक है, माता जी पूछ लीजिए फिर क्वेश्चन। परम पुरुष कृष्ण ही है, पुरुष कृष्ण ही है। इधर हम आत्मा की बात करें, आत्मा अंश है। माता जी, आर यू क्लियर? नॉट क्लियर? इट्स ओके माता जी, परम पुरुष तो क्लियर है कि श्री कृष्ण है, बट लाइक अर्लियर वी वर जस्ट सेइंग कि पुरुष एलिमेंट तो सिर्फ एक ही है, दैट इज श्री कृष्ण, और बाकी सब स्त्री एलिमेंट है। पुरुष, बट मैं स्त्री जो बोल रही हूँ तो मैं अपनी बॉडी की बात कर रही हूँ, मैं अपनी आत्मा की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं स्त्री हूँ तो मैं बॉडी से स्त्री हूँ, आत्मा से मैं परमात्मा का अंश हूँ। आप भी बॉडी से स्त्री हैं। कुछ लिमिटेशंस है स्त्री होने की वजह से और कुछ लिमिटेशंस होती है पुरुष की बॉडी की। तो हम बॉडी की जो बात करें ना, स्त्री बोल रहे हैं तो हम बॉडी बोल रहे हैं। तो अर्जुन ये बताना चाह रहे हैं कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा का बेसिक नेचर समझो और नेचर समझ करके तुम साधना करो। और साधना करके क्या होगा? जो हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं है ना भोगने की, ये भी भोगना है, वो भी भोगना है, वो भी भोगना है, वो फिल्टर होंगी। जब वो फिल्टर होंगी तब तुम मुझसे कनेक्ट हो पाओगे और अपने कर्तव्य के करते हुए मेरे मेरे से कनेक्शन तोड़ोगे नहीं, बल्कि और स्ट्रॉन्ग करोगे। और हर कर्तव्य को मेरे लिए करना है ऐसे सोच करके कर्तव्य करोगे। अगर अर्जुन तो नहीं चाह रहा था मुझे लड़ना है, परंतु जब उसने समझा कि मैं ये बॉडी नहीं हूं तो मुझे इस बॉडी के बनाए हुए रिश्तों से इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्वभाव क्या है? बेसिक नेचर क्या है? टू लव कृष्णा, टू सर्व कृष्णा। तो मैं उस बेसिक स्वभाव को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन कर्तव्य को कृष्णा के लिए करूं। इज इट ओके? ये शॉर्ट में मतलब है। माता जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके No, माता you जी। have to be clear, Mataji. You have to be clear. Only then we'll move forward. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी ही समझ इसको क्लियर कर लीजिए। और आप क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। अर्जुन भी क्वेश्चन पूछ के ही, कहीं भी हम अपने लिए मत पूछिए, आप अपनों के लिए पूछ लीजिए। अर्जुन भी ऐसे ही करता है। क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछ सकते हैं अगर आपको और भी पूछना है तो।
नो माताजी, ये तो क्लियर है कि परम पुरुष श्री कृष्ण है, दैट इज फाइन. एंड One thing is yeah, then what you earlier what we were matlab what had come up was that Arjun is the purush and all of us are in like the feminine, the prakriti. But now in this chapter they are clearing on the body level and the soul level. That is what I हाँ understood. हाँ So further demarcation here. So then everybody on the bodily level, I may be a Stree, but in a Stree and somebody can be in the Purush body because they want to enjoy more. But the ultimate Purush is Sri Krishna only. परम पुरुष तो कृष्ण ही है. फिर यहाँ पे और ये दो चीजों की बात है, बॉडी की और आत्मा की, दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है. परम पुरुष कृष्ण ही है और इधर बॉडी वाली लेवल में कोई आदमी बना हुआ है, कोई औरत बना हुआ है, कोई किसी और बॉडी ली हुई है, कुछ इस तरीके से. आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है, कृष्ण का ही अंश है, ठीक है. वो पूर्ण का ही अंश है और जो अंश है उसको तसल्ली तभी आएगी जब वो पूर्ण से मिल जाएगा, ठीक है. ये पूर्ण है, ये अंश है, ये जो अंश है ये निकल जाएगा तो ये अपना पोषण वोषण नहीं कर पाएगा, परंतु जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो इसका पोषण भी मिलेगा, इसका अस्तित्व भी मिलेगा, इसको पर्पस मिलेगा और ये संग भी रहेगा. समझ गए. परंतु ये बात अलग है कि ये जो अंश है ये जब पूर्ण से मिल रहा है तो ये बात नहीं कि इस अंश का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है. ऐसे ही हम अंश हैं और वो पूर्ण है. हमारी जो तृप्ति होगी वो जब हम अंश पूर्ण से मिल जाएगा तभी तृप्ति होगी. वो होगी कैसे? जब हम साधना करेंगे तभी. हमारी साधना से क्या होगा? फिर हम आलतू फालतू इच्छाओं को फिल्टर करके फिर हम जो परम इच्छा है जो कि हमें कनेक्ट करती है हम उससे मिलेंगे. इज इट ओके? इज इट ओके? हरे कृष्ण माता जी. अनुप्रिया माता जी. मेरे समझ से आपने ये समझाया है कि यहाँ का पुरुष एंजॉयर है. ये पुरुष और स्त्री की बात यहाँ नहीं हो रही है. यहाँ का सुनिए मेरी बात. पुरुष एंजॉयर ही है. परम पुरुष परम एंजॉयर है. एक्चुअली एंजॉय करने का हक उन्हें ही है, ठीक है. हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनके एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं. फिर इधर भौतिक जगत के अंदर में जिसने पुरुष की बॉडी ले ली है तो उसमें भी वो स्टाइल आ गया ना. फिर वो भी एंजॉय करना चाहता है, वो भी डोमिनेट करना चाहता है, वो भी कंट्रोल करना चाहता है, काबू करना चाहता है. उसमें वो आ गई ना स्टाइल, वो वाली आ गई स्टाइल. तो वो स्टाइल आ गई क्योंकि वो बॉडी पुरुष की है, ठीक है. सो दिस इज क्लियर राइट? यही बात चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. देखना इस वाले पूरे चैप्टर में यही बातें चलती रहेंगी. फिर इसको हम और अच्छे से समझेंगे. तो अब हमको समझ में आ गया है कि फर्स्ट क्या था, कि हमारे को क्या था कि व्हाट वाज द फर्स्ट वन, प्रकृति और पुरुष क्या है, समझ में आ गया. हमको समझ में आ गया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है. क्षेत्र मतलब फील्ड है, काम करने का फील्ड है, ये बॉडी है, ये फील्ड है. और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ जैसे किसान को काम करने के लिए खेत चाहिए, आत्मा को कर्म करने के लिए बॉडी चाहिए. तो क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा है. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है. अब आगे ज्ञान और गे. गे क्या है? गे वो वस्तु है जिसको जानकर अमृत का आस्वादन होता है. ये कौन सी वस्तु है जिसको जानकर अमृत का आस्वादन होता है? ऑब्वियसली कृष्ण है. जिसको जानकर अमृत का आस्वादन होता है वो वस्तु कौन है? वो कृष्ण है. कृष्ण ही परम सत्य है. अभी तक हम जान चुके बहुत बार, कृष्ण ही परम सत्य है. शुरू में कोई भी उस कृष्ण को जानने के 3 लेवल्स होते हैं. शुरू में सब प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, इस तरीके से जाना जाता है. उसके बाद भ्रम ज्योति है, मतलब ठीक है, मतलब निराकार रूप में भगवान को जानते हैं. जो एलिमेंट्री लेवल में होते हैं, जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल में होते हैं, वो भगवान को निराकार रूप में या ब्रह्म ज्योति में जानते हैं. फिर थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो भगवान को परमात्मा या विष्णु रूप में जानते हैं. क्षीरोदक्ष विष्णु है ना परमात्मा, उस रूप में जानते हैं. और फिर जो सबसे सुंदर लेवल होता है जब प्रेम का कनेक्शन बैठता है, वो क्या? भगवान लेवल. वो भगवान लेवल क्या है? कृष्णा को कृष्ण के रूप में भगवान की तरीके से हम जान पाते हैं, ठीक है. वो कृष्ण जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी है, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ है,
जो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके ऊपर कोई ट्रूथ नहीं है, उसके ऊपर कोई सच नहीं है, उसके ऊपर कुछ और नहीं है, तो वो है अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य। तो ये क्या हो गया, ये गे हो गया, ये वो वस्तु है, जानने योग्य वस्तु, जिसको कि जान करके अमृत का आस्वादन होता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वो चीज है, वो साधना है जिससे कि हम वस्तु को जान सकते हैं। कौन सी वस्तु? कृष्ण को। तो गे क्या है? वो नॉलेज है, वो साधना है जिससे कि हम कृष्ण को जान सकते हैं। इज इट ओके? तो कैसी साधना करें जिससे कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, ये समझना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो हो ना, तुम ये तुम आत्मा हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम ये बॉडी नहीं हो। तुम कौन हो? तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम क्षेत्र नहीं हो। तुम ये बॉडी, तुम ये फील्ड नहीं हो। तुम जानो कि तुम कौन हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा हो इसलिए तुमको जितनी जल्दी तुम पहचान जाओगे ना, उतनी जल्दी तुम क्या करोगे? साधना करोगे। और साधना कैसे करोगे? जिससे कि तुम्हें मुझसे प्राप्ति हो जाए। साधना ऐसी करो कि अपने कर्तव्य को मेरी खुशी के लिए तुम करो, ये साधना होनी चाहिए, ऐसी साधना तुम करो। ठीक है? साधना करने से प्रकृति को भोगने की जो इच्छा होती है वो फिल्टर हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है? करोड़ों विचार हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं हम। करोड़ों विचार आते हैं, कैसे एंजॉय करें, कैसे एंजॉय करें, कैसे एंजॉय करें, कैसे एंजॉय, ये सब करोड़ों विचार आते हैं। तो उनसे मुक्ति पा करके और फिर हम क्या करते हैं, हम आत्मा की बेसिक खुशी, जो एक्चुअल बेसिक नेचर जो है ना, उसमें आते हैं। और आत्मा का बेसिक नेचर क्या है? कृष्ण नित्य दास। हम उसको समझ पाते हैं। वो कब समझेंगे? जब हमारा ये फॉगिंग हटेगी कि एंजॉय तो, खुशी तो मुझे उससे मिलेगी, वो इंसान मुझे खुश कर सकता है, वो सिचुएशन मुझे खुश कर सकती है, बैंक में एटलीस्ट इतना पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सब चीजें उसको लगता है कि वो मुझे खुशी प्रदान करेगी, और इसी में वो लड़ता रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। परंतु जब वो सोच लेता है कि एक्चुअली बॉडी लेवल्स में कंफर्ट डिस्कंफर्ट की बात नहीं है, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को परम सुख किससे मिलेगा? जब अंश पूर्ण से मिलेगा। जब मैं, मुझे सुख कैसे मिलेगा? जब मैं पूर्ण से मिलूंगी, या जब मैं उनसे कनेक्ट होगा आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होगा, तभी पूर्ण जो सुख मिलेगा। ठीक है? तो उसके लिए वो साधना करता है। इज इट ओके? उसके लिए वो साधना करता है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि असंख्य क्या है, मतलब अनलिमिटेड असंख्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा था? इच्छाएं असंख्य हैं, चिंताएं असंख्य हैं। एक इच्छा को पूरा करोगे तो शांत नहीं होती है, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। एक चिंता का आप सोल्यूशन ढूंढोगे तो दूसरी चिंता खड़ी हो जाती है। तो ये तो असंख्य चीज है। तो हमें क्या समझना है? हमें साधना पे साधना पर करने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। साधना ठीक होगी तो ये इच्छा भी फिल्टर हो जाएगी, चिंता भी, हम सोचेंगे हम हैं ही क्या। तो अपना डिपेंडेंसी हम बढ़ा देते हैं कृष्णा पे। और जब बढ़ा देते हैं तो ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए अब तो कृष्ण नहीं, हम अच्छे से कार्य करते हैं परंतु एंड रिजल्ट की चिंता नहीं करते। कार्य हम अपना कर्म करके ही खुश हो जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से, तो इसलिए कि साधना ऐसे करें कि हम अपना बेसिक नेचर को भूल ना पाए। ठीक है? और सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है साधना करने के लिए, सबको समान अपॉर्चुनिटी है। रिच पुअर ये सब का कोई बात नहीं, सब साधना कर सकते हैं और सबको अपॉर्चुनिटी है साधना की। तो साधना करें और भगवत प्रेम प्राप्त करें, साधना करें और भक्ति करें। ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। हरे कृष्णा। देन फ्रॉम टुडे वी रियली एक्सीडेड, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। ये आज टुडे का जो इंट्रोडक्शन था बहुत ज्यादा थोड़ा सा वैसा था, ट्रिकी था। सो वी विल स्किप टुडे, वी विल स्किप द की लर्निंग एंड इवन द कोड शेयरिंग।